very dilute solution. Okay, now listen here. Here solution is prepared by dissolving non-volatile solute. Already we have discussed last lecture, when you put non-volatile solute in volatile solvent, so but obvious vapor pressure of that solution, resulting solution will decrease compared to volatile solvent. ये आप माइंड में फिक्स करके रखना. Now consider a solution of two component A1 and A2. A1 and A2, that means एक solvent है and general trend is what, one is what solvent and two is what solute. So it is binary solution, one A1 solvent or A2 solute है which is non-volatile. Already one more that derivation already we have done. Now here the case is what, in that first case both solvent as well as solute were volatile, but here now the thing is what, this is what solute is what non-volatile. What does it mean? It is not going to participate in evaporation का process. तो देखो P01 and P02, again I am telling one stands for solvent. P01 and P02 be the vapor pressure of pure component. P0, P1 and P2 be the partial vapor pressure. You know what is the formula for partial vapor pressure? It is the multiplication of vapor pressure of pure component and mole fraction. And X1 and X2 are their mole fraction. Now, as we said, if the component A2 is non-volatile, it does not evaporate and does not contribute to the total vapor pressure. उसका evaporation होगा ही नहीं, vapor बनेगा नहीं, तो vapor pressure उसका रहेगा ही नहीं. Therefore, this law is applicable only to volatile solvent. Means जो हम लोग प्रेशर P1 प्लस P2 लेते थे, अभी P2 तो 0 बन गया, तो अपना पूरा गेम किसके ऊपर डिपेंड है, P1 के ऊपर. P1 is what, partial vapor pressure. Okay, so P01 into X1. But as you know, mole fraction का total हमेशा 1 रहता है, तो what I'll do, in place of X1, I'll put 1 minus X2 and I'll solve. It is P01 minus P01 minus P01 X2. अभी ये जो P1 है, P01 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा इधर लेके आऊंगा, तो आपका आंसर बनेगा P01 minus P1 is equal to P01 X2. अभी देखो यहाँ, the thing is what, but you know one thing, this is what difference between, यहाँ पे not लिखा रहेगा, it is pure solvent, so it is what vapor pressure, difference between vapor pressure of pure solvent minus what, tell me, solution. Okay, so minus what, tell me, solution, and it is what P1 X2. But this difference P01 minus P1, ये जो है, it is called delta P, nothing but my dear lowering of vapor pressure. ये तो हम लोग देखा है. So delta P, so I can write down in place of this one, I'll put delta P is equal to P01 into X2. तो मैं इधर इसको इधर लेके आऊँ तो बनेगा delta P upon P01 is equal to X2. What is X2? Mole fraction of solute. And as it depends on mole fraction, so that's why it is colligative property. It is colligative property. अभी next page पे आएगा what is colligative property. Okay, so this is what first colligative property we did. अभी आगे देखते हैं. मंगता है तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ, बेटा ध्यान देना. अपने पास सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है A1 और A2. अब की बार A2 मींस व्हाट, सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, दैट्स व्हाई अपना टोटल प्रेशर जो है उसमें A2 मींस व्हाट, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा. बट यू नो टोटल प्रेशर कैसा रहता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट, उसमें P2 नहीं रहेगा. तो जो भी वेपर प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन का, दैट इज बिकॉज ऑफ P1. That means P1 is your vapor pressure of solution. And बाद में ये X1 का वैल्यू 1 minus X2 डाल के सॉल्व किया. So we got here P01 minus P1. This difference is nothing but delta P. That is called lowering of vapor pressure. And we got this answer, delta P.
ओके, अभी आगे देखते हैं ना। अभी देखो क्या लिखा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी बताया था मैंने। रिलेटिव टर्म मीन्स व्हाट, डिवीजन, कंपैरिजन। तो डेल्टा P अपॉन P10 is equal to, but what is delta P? P01 minus P, and it is what, P10. Okay, so but delta P upon P10 हम लोग किया है x2, so we can put P01 minus P या P1 बोलो, P01 is equal to what, x2. Okay, so relative lowering of vapor pressure is equal to relative lowering of vapor pressure. What is relative lowering of vapor pressure? Ratio of delta P to P01 is equal to mole fraction of 2. 2 means what? Solute. 2 means what? Solute. And therefore it is also colligative property. And आपको मालूम है lowering of vapor pressure is the difference. Okay, ये सब हो गया. आगे देखो, ideal and non-ideal solution. What does it mean? If you put solute and solvent, liquid, हाँ दोनों liquid, okay, and suppose 5 ml लिया, 5 ml solute, दोनों, again I am telling, solute and solvent both are in liquid state. If I am going to take 5 ml solute and 5 ml solvent, so 5 plus 5, what is the value? Volume should be 10. Am I right? So if we are getting answer of total volume is what sum solute in solvent. There is no interaction between solute and solvent. This volume will be different. This volume will be different. Such type of solutions are called non-ideal solutions. Such type of solutions are called non-ideal solutions. Okay. Now, सर नहीं listen. समझा आइडियल. बता अभी स्टार्ट नहीं किया. सुन. Ideal solution. First of all, they obey Raoult's law. What is Raoult's law? P01 means what? Relative lowering of vapor pressure is equal to x2. ये Raoult's law. So first of all, they obey Raoult's law. And listen here. पहले मैं ये third point बताता हूँ. एक मिनट है ना. देखो, delta V means what? Change in mixture is what? 0. No volume change when two components are mixed. मैंने क्या बोला? सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड रहेंगे. No volume change in two components are mixed. Means what? Volume of solution is equal to the sum of volume of two components. I started with same thing. If I am going to take 5 ml and 5 ml, so it is what? 10 ml. So if you are getting 10 ml, that means there is no volume decrease. Final जो है solution जो बनेगा, ध्यान दो, if मैं 5 ml और 5 ml मिक्स करता हूं तो बट ऑब्वियस आपका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम 10 ml ही मांगता है. And if we are getting 10 ml, देखो ना, it means volume of solution is equal to sum of volume of two components. It is what? Ideal. Delta H, जब आपको थर्मोडायनेमिक्स हुआ नहीं है करके, change H means what? Enthalpy, heat content. That means if there is no heat evolved, neither heat is evolved nor absorbed. Okay, means what? उसका heat same रहेगा. देखो, no heat evolved or absorbed when two components are mixed. Again, it is what? Ideal solution. Okay, अभी इसमें क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है, अभी जब सॉल्यूशन बनेगा तो क्या रहेगा? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड ना. सोल्यूट सोल्यूट बॉन्ड, बट ऑब्वियस सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड एंड सॉल्वेंट सोल्यूट बॉन्ड. So these 3 intermolecular attraction, in short interactions, are what? Comparable. Okay, and vapor pressure, वापस एक बार मैं इसलिए रिपीट करूंगा, vapor pressure of ideal solution always lie between vapor pressure of pure components. Vapor pressure of pure means what? Pure solute और pure solvent, इसका दोनों का वेपर प्रेशर का बीच में
आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा. ओके, नाउ वापस, हाउ टू रिमेंबर, लिसन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल दे ओबे राउल्स लॉ, डेल्टा, ये सब याद नहीं रखने का, सिर्फ इतना याद रखने का बेटा. जब भी आप बोर्ड के लिए आंसर बनाते हो, बट ऑब्वियस टीचर, अभी सपोज दिस इज व्हाट जुलाई इज गोइंग ऑन एंड आपका एग्जाम अभी कभी होगा मालूम नहीं, बट सपोज जनरली फेब में होगा, तो प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल नहीं कि सब कुछ याद रहे. तो डू वन थिंग, try to prepare your own answer in the form of formatting करने का. अरे हाँ, ideal solution, first point is what, राउल ओबे रॉयल्स लॉ, इतना ही लिखने का. डेल्टा v of mixture 0, delta h of mixture 0. What is next one? Interactions are what, comparable, and vapor pressure of that solution should be in the middle between solute and solvent. So this is what, tell me, ideal solution. आगे जाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. जस्ट टेल मी अभी, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? 5 ml प्लस 5 ml 10 ml होगा, तो वो क्या है? आइडियल है. नाउ व्हाट वुड बी नॉन आइडियल? क्या होगा? 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ना. तो आप क्या बोलोगे? व्हाट इज नॉन आइडियल? लॉजिकली बोलो. 5 प्लस 5 0. नहीं, अरे जीरो कैसे होगा? 5 ml लोगे, 5 ml लोगे तो वॉल्यूम 0 बन जाएगा. So is not equal to 10. Yes, is not equal to 10. What does it mean? It may be more than 10 or may be less than 10. समझा बेटा? May be more than 10, may be less than 10. देखो ना, मैंने पेज खोला भी नहीं है नॉन आइडियल का. Now just tell me, जो भी बच्चे ने बोला कि it is not equal to 10, so मैंने सिर्फ आगे जाके सिर्फ सप्लीमेंट किया कि may be less than 10 या may be more than 10. Now just tell me when it will be more than 10. देखो, सॉल्यूशन बनने के लिए 3 इंटरैक्शन मांगता है. बेसिकली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सोल्यूट सॉल्वेंट में प्यार होना चाहिए. सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट. नाउ जस्ट टेल मी, इफ आई एम सेइंग आफ्टर मिक्सिंग 5 ml एंड 5 ml इट इज मोर देन 10, चलो बोलो क्या होगा? अगेन आई एम टेलिंग, प्यार किसमें होना मांगता है? सोल्यूट सॉल्वेंट में. सोल्यूट सॉल्वेंट में, चलो बोलो. तो इट इज मोर देन 10, व्हाट डज इट मीन? है ना? तो बेटा वो जो सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन है, इट इज व्हाट? लेस, है ना? तभी वो क्या है? ये है. देखो अभी आगे देखते हैं. लिसन, इट्स गुड कि आप बच्चे लोग सोच के जवाब देते हो. इट्स गुड, वेरी गुड. मैंने आपको अभी तक देखा नहीं है. लिसन, they do not obey Raoult's law. Vapor pressure of these solutions can be higher or lower than pure component. उधर क्या था? Vapor pressure of the solution should be in middle of the two. Positive deviation. What is positive deviation? 5 plus 5 का आंसर क्या रहेगा? More than 10. When solute solvent intermolecular attraction are weaker, मीन्स सोल्यूट सॉल्वेंट में प्यार कम है, इंटरैक्शन कम है करके वो लंबे रहेंगे थोड़े से. ओके, देन दोज बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इट इज पॉजिटिव डेविएशन, मींस व्हाट? वॉल्यूम विल इंक्रीज. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट वन? नेगेटिव डेविएशन. द सॉल्यूशन इन विच interaction between solvents and solute are stronger than solute solute and solvent solvent. Now just tell me logically, in this negative deviation 5 plus 5 का आंसर 11 रहेगा कि 9 रहेगा? 5 plus 5 10 रहेगा, तो आइडियल ना बच्चा. तो इधर देखो, the solution in which interaction between solvent and solute are what? Stronger. तो क्या रहेगा?
देखो ना इधर नाम ही बता रहे हैं, निगेटिव मींस डेल्टा वी क्या रहेगा, लेस देन 10 रहेगा, समझा बेटा, लेस देन 10। और पॉजिटिव में क्या रहेगा, मोर देन 10। ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज आर द एग्जांपल्स। आपका बुक में एक या दो ही लिखा है, मैंने इतना पूरा लिख के दिया आपको। ये आइडियल है, ये पॉजिटिव है। आप पॉजिटिव याद कैसे रखने का मैं बताता हूँ, एक छोटा सा ट्रिक। लिसन हियर, जहां पे जहां पे CCl4 है, जहां पे CCl4 है, और जहां पे ये है क्या बोलते हैं उसको, एसीटोन है जनरली, बट आई टेल यू, जहां पे CCl4 है, देखो ये 4 ज्यादा है ना, तो इट इज पॉजिटिव डेविएशन, और CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म है, 3 कम है ना, तो ये निगेटिव डेविएशन। ऐसे एक छोटा सा ट्रिक याद रखो, ओके, जनरली। नेक्स्ट वन, एसीटोन, एसीटोन है, एसीटोन इज व्हाट पॉजिटिव। अभी आप बोलोगे सर एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ है, बट 3 मींस व्हाट कम नंबर है, तो याद रखो ट्रिक, इट इज व्हाट निगेटिव डेविएशन। ओके, लाइक दिस। ये मोस्टली यही एग्जांपल पूछते हैं, ये याद रखें। ये बेंजीन टोलुइन एक बार पढ़ के जाना तो आइडियल हो जाएगा। हाँ, नाउ टेल मी व्हाट इज आइडियल, 5 + 5 10। नॉन आइडियल में देयर आर टू थिंग, वन इज व्हाट निगेटिव, वन इज व्हाट पॉजिटिव। व्हाट इज निगेटिव, less than 10, what is positive, more than 10, what is negative deviation, what is negative deviation, देखो बेटा, solvent solute bond is what stronger, solvent solute bond is what stronger, understood। next, अभी ये देखो, what is the heading written here, molar mass of solute from vapor pressure। जब भी डेरिवेशन लिखना है ना, तो लिसन हियर, आपको मालूम बनता है कि क्या क्या है। इट इज व्हाट वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर लोअरिंग। सो यू नो आर, अभी मैं ऐसे याद रखने का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर याद कैसे रखने का, RLVP। सो व्हाट इज RLVP, तो देखो आराम से, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज व्हाट डेल्टा P, एंड रिलेटिव मींस व्हाट अपॉन P1 P01। तो डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2। ये बेटा आपको याद रखना ही है, इसके ऊपर हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू x2, बट यू नो ऑलरेडी व्हाट इज x2, ये आपने 11 में पढ़ा है। व्हाट इज दैट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट फॉरगेट, 2 means what solute and 1 means what solvent। so x2 is equal to n2 upon n1 plus n2, n2 upon n1 plus n2। बेटा अभी ध्यान देना, what I said, Raoult's law is applicable for very dilute solution। so if solution is dilute, solution is, देखा अभी यहाँ पे आप एक क्वेरी पूछोगे, शायद नहीं पूछेंगे तो मैं पूछ, okay, when solute is dilute means what, very dilute solution means what, amount of solute in solvent is ना के बराबर। so in denominator we are getting term n1 plus n2। so as amount of solute A compared to solvent is ना के बराबर, means what, n2 is very 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 less than n1। so I can consider n2 is equal to 0। सो n1 plus 0 n1 हो गया। बच्चा इमीडिएटली पूछता है सर आपने n2 0 लिखा, तो न्यूमरेटर में भी 0 लिख दो। अरे भाई कैसा लिखूंगा, तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा। आई एम हियर दिस n2 का कंपैरिजन, here n2 का comparison with n1, and that's why, and it is very dilute, that's why it is considered as 0। so what is the answer, ये जो x2 है वो बनेगा n2 upon n1। नाउ अपने को कौन सा टर्म मांगता है, मोलार मास। मोलार मास टर्म किस में आता है, नंबर ऑफ मोल्स में। अभी देखो व्हाट इज n1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बट व्हाट इज फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास। 1 लिखा है तो 1 1। n2, यस, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलार मास 2 2। ओके, सो दिस n2 का वैल्यू, this n1 का वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट हियर। So therefore x2 is equal to W2 upon M2 upon W1 upon M1।
W1 upon M1. ओके, अभी देखो what are M1 and M2? Molar masses of solvent and solute. What is delta P? You know delta is what change, the lowering of vapor pressure of solution. ओके, अभी देखो आगे अपने स्टार्ट किधर से किया था, RLVP से. चलो बोलो बच्चा व्हाट इज RLVP, चलो फास्ट बोलो. डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू X2. ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो सो डेल्टा P अपॉन P01 इज इक्वल टू X2. तो ये जो मैंने पूरा वैल्यू है उसको देखो W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1. तो बट ऑब्वियसली M1 न्यूमरेटर में जाएगा, तो व्हाट आई रोट W2 M1 अपॉन M2 W1, है ना. ये M1 जो है वो ऊपर चला गया तो W2 M1 आ गया, तो ये डिनोमिनेटर में M2 W1 आ गया. ओके, सो व्हाट इज द आंसर. अभी मैं इसको थोड़ा इलेबरेट करूंगा. व्हाट इज डेल्टा P? Change in vapor pressure of solvent minus vapor pressure of solution. So A1, this one P01 minus P W2 WM MW 2121. ओके, नाउ जब भी आप डेरिवेशन लिखते हो ना तो डू वन थिंग, यू कीप प्रैक्टिस. ये सब टर्म आप देखो, अभी मैं बताता हूँ, ये सब टर्म आप उधर लिखना उधर ही चालू कर दो. डू वन थिंग, यहाँ पे पिक्चर खत्म हो गया तो पिक्चर के एंड में नाम लिखो. क्या क्या इसमें कैरेक्टर थे? P01. व्हाट इज P01? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. व्हाट इज P1? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर सॉल्यूशन. इन शॉर्ट आप बोल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तभी भी चलेगा. W1 एंड W2, W इज व्हाट वेट है ना, 1 एंड 2 आपको मालूम है, बताने का जरूरत नहीं है. सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. Okay, and N1 and N2 are what? Number of moles of solvent and solute. Okay, so this is the derivation. वापस मैं एक बार बताता हूँ. बच्चे को आपको डेरिवेशन लिखते टाइम स्पेशली फिजिक्स में, केमिस्ट में, ओके, प्रॉब्लम क्या होता है, सर स्टार्टिंग का लाइन बताओ ना, हमको पूरा डेरिवेशन आता है सेकेंड लाइन से. मीन्स व्हाट डज इट मीन? आप डेरिवेशन सेकेंड लाइन से बाय हार्ट करते हो क्या? नहीं, आपको स्ट्राइक ही नहीं होता. तो देखो ना यहाँ पे लिखा है मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग. मीन्स वो आपको RLVP लेना है. सो आई हैव टू स्टार्ट विथ RLVP. सो इफ यू राइट ऑन RLVP, सो व्हाट इज RLVP? डेल्टा P अपॉन P01. डेल्टा P की जगह पे लिख दो P01 माइनस P1. X2 की जगह पे लिख दो N2 अपॉन N1 N2 को 0 बना दो. N2 अपॉन N1, N का व्हाट इज द मीनिंग? नंबर ऑफ मोल्स. W2 अपॉन M2, N1 क्या है? W1 अपॉन M1 और सॉल्व कर दो. तो बेटा डेरिवेशन बाय हार्ट करने से अच्छा आप ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट वन, colligative properties. Already one we have done. First of all, let me tell you. First of all, let me tell you what is colligative property. Colligatous means all together. Colligatous means what? All together. ये आपको पहले मालूम हो. Okay. Now, the important thing is what? Colligative properties are properties of solution that depends on number of solute particles and do not depend on their nature are called colligative properties. Vapor pressure lowering, or we can say, अभी आप लोग देखो इधर क्या लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. बच्चे को ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद समझता ही नहीं कि सर इसमें सब्सट्रैक्शन किसका था, P01 का था कि P1 का था. सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन माइनस करना है कि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट माइनस करना, ये समझता नहीं. तो यहाँ पे लिखो क्या लिखा है,
वेपर प्रेशर लोअरिंग, सिर्फ आप इसके आगे बोलने का ऑफ सॉल्यूशन. नाउ अगेन आई एम टेलिंग वी आर कंपेयरिंग सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट. इधर क्या लिखा है, सी आई हैव नॉट स्टार्टेड एनीथिंग, दिस वी हैव डन. और आपको फॉर्मूला मालूम है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट वन माइनस पी वन. इन शॉर्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन. सब्सट्रैक्शन किससे करते हैं, हायर वैल्यू से, है ना. तो इफ आई एम गोइंग टू राइट डाउन ये चारों का आगे अगर मैं लिख दूं ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया. वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्यूशन. अभी उसको उल्टा इमेजिन करके पढ़ो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो है तो किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का. एंड हायर माइनस लोअर इज द डिफरेंस. देखो इधर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सॉल्यूशन, एलिवेशन मींस बट ऊपर जाएगा ना, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, ऊपर जाता है, तो बट ऑब्वियस सॉल्वेंट का कम है. तो व्हाट इज द आंसर, हायर माइनस लोअर मींस व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. इसको पढ़ो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं जानबूझ के, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, कम होता है, बट ऑब्वियस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है. दैट्स व्हाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. हेलो, हाँ सर, मेरा 5 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया सर, रिपीट करोगे आप? करता बेटा, एक मिनट. आप बाद में जरा मेरे को बोल देना कहाँ से, पहले मैं जरा थोड़ा ये चालू करता हूँ. हाँ, तो डोंट वरी, डोंट वरी. देखो बेटा यहाँ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. इफ यू आस्क स्कूल लेवल पे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो स्कूल का डेफिनेशन रहेगा, ओके, द टेम्परेचर at which liquid boils is called boiling point. क्योंकि वो लेवल पे वो बराबर है. आप लिखोगे तो नहीं चलेगा. छोटे क्लास में पढ़ाएंगे सेकेंड थर्ड में व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो उनको बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच वी गेट बबल्स. हम लोग ऐसा लिखेंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि हम लोग 12th में है. तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच vapor pressure equals atmospheric pressure. What is boiling point? Temperature at which vapor pressure equals atmospheric pressure. Means boiling होगा means क्या होगा, जो लिक्विड है वो टेम्परेचर पे वो लिक्विड जो है वो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में जाएगा. मींस एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा उसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर. सपोज आप क्लासरूम में हो और बाहर कोई नहीं है, तो आप लोग वो डोर ओपन करके, सपोज 2 घंटे का लेक्चर है तो हाफ एन आवर में ही भाग जाओगे क्योंकि बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं है. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वन लेट मी टेल यू वन थिंग. अल्टीट्यूड पे मीन्स व्हाट, हाइट पे क्या करते हैं, प्रेशर कुकर यूज करते हैं पोटैटो पकाने के लिए. आप बोलोगे सर हमारे घर पे भी करते हैं. हम लोग किधर, हम लोग तो सी लेवल पे रहते हैं. हम लोग को टाइम सेव करने के लिए करते हैं. एक्चुअली वी डू नॉट रिक्वायर प्रेशर कुकर, तभी भी हम लोग यूज करते हैं. नाउ द थिंग इज व्हाट, जैसे आप हाइट पे जाओगे तो बट ऑब्वियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बट ऑब्वियस मीन्स व्हाट, एटमॉस्फेयर से ऑपोज है ही नहीं वो लिक्विड के ऊपर, तो दैट लिक्विड विल कम इन द वेपर फॉर्म एट लो टेम्परेचर. दैट मीन्स उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एंड वो कम टेम्परेचर पे वो पोटैटो नहीं पकेगा. एंड दैट्स व्हाई हम लोग उधर क्या करते हैं, अपने आपको मालूम रहेगा या मम्मी को पूछ लो, हम लोग प्रेशर कुकर कैसे अप्लाई करते हैं, पानी रखते हैं, बाद में वो सब उसमें खाना का टीन ये रखते हैं, क्या कंटेनर रखते हैं, तो वो
जो वाटर है वो ऊपर जाके ऊपर बंद है, तो वो रिवर्स में क्या मारता है, वेपर प्रेशर मारता है. बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. अभी देखो व्हाट इज, मैंने क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस व्हाट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है. मींस व्हाट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एंड सॉल्वेंट का कम है. तो दैट्स व्हाई डेल्टा टीबी, व्हाट इज डेल्टा, चेंज इन दिस वन. तो व्हाट इज दैट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट. और एक चीज देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहां पे टीबी नॉट, P1 नॉट लिखा है, तो नॉट मींस व्हाट, प्योर सॉल्वेंट है, ये याद रखने का. सो इट इज व्हाट, टीबी, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो हायर माइनस लोअर. नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ये सब नहीं, लाइन नहीं पढ़ने का, ये पढ़ने का. व्हाट इज दैट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू माइनस डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर और सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. देखो बेटा, difference between boiling point of solution and that of pure solvent at any given pressure is called boiling point elevation. Okay, अभी आगे देखो. बेटा एक ग्राफ देखना अभी. Boiling point elevation as consequence of pressure, vapor pressure lowering. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको मैंने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाया, तभी आपको मैंने बताया था कि एक कंटेनर में ऊपर इफ आई एम गोइंग टू कीप लीड, ढक्कन रख दूं, तो वो वेपर, जो लिक्विड का वेपर इवेपोरेशन होके वापस जब भी नीचे आएगा, दैट इज व्हाट वेपर प्रेशर. और तभी हम लोग उधर डेफिनेशन भी देखा था. देखो आपको मैंने वापस एक बार बताता हूँ. लिसन हियर, द थिंग इज व्हाट, लिसन हियर, इट इज व्हाट कंटेनर. तो ये कंटेनर से वो वेपर ऊपर चला जाएगा. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, what is the definition of vapor pressure? Pressure exerted by vapor, pressure exerted by vapor of liquid on the surface of liquid at a given temperature at equilibrium. ऐसे मैंने definition बताया था. Okay, now what is the meaning of at a given temperature? Means if temperature increases, but obvious kinetic energy will increase, and but obvious vapor, more and more vapor will form, more and more evaporation will be there, and that's why vapor pressure will increase. In short, delta P is directly proportional to boiling point. ये concept आपको मालूम होता है. Delta P is directly proportional to boiling point. बेटा अभी ध्यान देना. If I ask you, अगर थोड़ा सा भी समझ रहे आपको तो देखो, what is delta P? Tell me anyone. What is delta P? What is delta? Relative lowering of vapor pressure. Okay, it's somewhat okay. I have asked only delta P. What was that? Difference. Yes. वो पूरा बोला ना बेटा. Difference means what? Lowering of vapor pressure. Am I right? है ना? Lowering of vapor pressure. बट आपको मैंने क्या बोला? See, P01 minus P1 है. किसी को लगेगा P1 minus P01 है. तो आपको मैंने क्या बोला? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और आगे एक ही वर्ड बोलो ना, सोल्यूशन, और उसको उल्टा पढ़ो. सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लो है, तो किसका ज्यादा है? आपको सिर्फ दो ही चीज से तो खेलना है, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूशन. तो मैंने क्या बोला? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. आगे आप बोलो सोल्यूशन, और उसको उल्टा पढ़ो. सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लो है, तो ज्यादा किसका है बच्चा? सॉल्वेंट का. तो व्हाट इज द आंसर? डेल्टा P इज इक्वल टू P01 माइनस P1. है कि नहीं? सो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से, सो हियर लिसन हियर, ये ग्राफ देखो. ऑन y एक्सिस इट इज वेपर प्रेशर. अच्छे से देखना. On x axis it is the temperature.
we are going to relate boiling point elevation, nothing but delta TB with delta P. How? I'll tell you. Simple. What is the relation? Delta P is directly proportional to temperature. हम लोग देखा है already. ऐसे नहीं बता रहा हूँ. Because जैसे temperature बढ़ेगा, more and more vapor will form and more vapor pressure. One more thing we know, delta P, what you said, is this what? Vapor difference between vapor pressure of solvent and solution. In short, vapor pressure solvent का ज्यादा है और solution का कम है. That's why this AB curve, अच्छे से सुनना बेटा, this AB curve is vapor pressure of solvent, and as vapor pressure of solution is less करके इसका solution का vapor pressure का curve उसके नीचे है. So this is CD curve is what vapor pressure of solution. Now, understood? So what I did, I started with graph of vapor pressure versus temperature. But we are talking about boiling point. यहाँ पे अभी तक boiling point कुछ आया ही नहीं है. Okay, so this AB curve, which is at upper side, is of vapor pressure curve of solvent, and CD curve is of vapor pressure of solution. Now the important thing is what? Listen here. On y-axis here it is written 760 millimeter. You know, 760 millimeter is what? 1 atmosphere. 1 atmosphere. And what is, अभी देखो मैं boiling point में घुस जाऊंगा. What is boiling point? Temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. This is the definition. हम लोग देखा है. Start उससे ही किया. Okay. देखो, the temperature at which vapor pressure of equals atmospheric pressure. Okay. Now, तो ये 760 मिलीमीटर मीन्स व्हाट? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये जो AB कर्व है, ये जो AB कर्व है, इसको इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये जो 7 इन शॉर्ट ये जो कर्व है ना, कर्व के ऊपर हम लोग टेंजेंट बना के काम करते, तो ये डॉट मीन्स व्हाट आपको ये समझो. तो ये 760 मिलीमीटर नथिंग बट 1 एटमॉस्फेयर वाला लाइन y x एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये पॉइंट पे. एंड दिस ग्राफ इज फॉर सॉल्वेंट. सो बट ऑब्वियस, अगेन देखो कर्सर देखो, ये इधर से आया, इधर से आया, ये नीचे आया. दिस टेम्परेचर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. अंडरस्टूड? मैं वापस एक बार बताता हूँ. AB कर्व क्या है? वेपर प्रेशर. y एक्सिस पे 760 मिलीमीटर इज व्हाट? 1 एटमॉस्फेयर. What is boiling point बच्चा? Temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. तो ये 1 एटमॉस्फेयर वाला लाइन ये इसको इंटरसेक्ट करके इधर आ गया. दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. लाइकवाइज ये जो सॉल्यूशन वाला वेपर प्रेशर का कर्व है, वापस 760 का लाइन नथिंग बट 1 एटमॉस्फेयर का लाइन इधर आ रहा है. तो देखो आपको ये x एक्सिस पे, but obvious when you go from left to right, so TB, but obvious TB का value should be more than what? TB0, and that's why देखो यहाँ पे मैंने लिखा डेल्टा TB is equal to TB minus TB0. Okay, and listen here. So मेरे को x एक्सिस पे TB माइनस TB0 आ गया. थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये किसका कर्व है? सॉल्वेंट का. इसको मैं अगर y एक्सिस पे लेकर जाऊं तो आपको मालूम है y एक्सिस इज ऑफ वेपर प्रेशर. तो मेरे को ये पॉइंट पे जो कर्सर है, ये पॉइंट मेरे को P10 मिलेगा. वैसे मैं ये CD कर्व को इसको इधर लेके जाऊं तो मेरे को P10 मिलेगा. y एक्सिस पे P10 बड़ा है, आपको मालूम है. तो P10 ये देखो, ये देखो P10 माइनस P1 इज व्हाट? डेल्टा P. अभी होता क्या है? these two curve runs parallel means what? पैरेलल लाइन समझो. पैरेलल लाइन का कर्व हमेशा, पैरेलल लाइन का स्लोप, व्हाट इज स्लोप?
y2 माइनस y1, ये देखो ये क्या है y2 माइनस y1 और ये क्या है x2 माइनस x1। मैं यहाँ पे भी वही ग्राफ लू, मीन्स व्हाट स्लोप लू, तो पैरेलल लाइन का स्लोप किधर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो स्लोप रहेगा डेल्टा पी का और डेल्टा टीबी का, वही स्लोप इधर भी रहेगा, वही स्लोप इधर भी रहेगा, किधर भी रहेगा। इन शॉर्ट जैसे डेल्टा पी बढ़ रहा है वैसे डेल्टा टीबी भी बढ़ रहा है। सो वी कैन राइट डाउन डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ये आपको मालूम होता है। ओके, अभी आप बोलोगे सर ये इतना क्या लिखा है, जो बकबक किया वही लिखा है, मैं वापस बताता हूँ। लिसन, हाँ इंपॉर्टेंट है बेटा ये। व्हाट इज दैट? लिसन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ मींस पहले y एक्सिस क्या है वेपर प्रेशर, x एक्सिस क्या है टेम्परेचर। these two curve we are getting. What are these two curve? One is solvent, one is of solution. Why solvent का curve is more? Because vapor pressure of solvent is what more. Now this AB curve, ये जो 1 एटमॉस्फेयर का लाइन है इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। CD curve of solution यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू TB माइनस TB0 इज व्हाट डेल्टा TB। इसको y एक्सिस पे कंपेयर करेगा तो P01 माइनस P1 इज व्हाट डेल्टा P। दोनों को पैरेलल चलते हैं करके किधर भी उसका स्लोप क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इन शॉर्ट जैसे डेल्टा P जो प्रोपोर्शन में बढ़ेगा वही प्रोपोर्शन में डेल्टा TB भी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा TB। ओके, नाउ देखो द ग्राफ इज प्लॉटेड between vapor pressure and temperature. Since vapor pressure containing non-volatile solute is less than pure solvent, hence AB curve, that is of solvent, lies above the curve CD. Intersection of curve CD with line of 760 millimeter is the boiling point of solution. सेम वे AB कर्व का क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा वही लिखा है सर। ओके, नाउ आगे एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, है ना। अभी क्वेश्चन arises, इफ बेटा भी ध्यान देना, if I am going to put if I am going to put non-volatile solute in solvent, ये चैप्टर में एक लाइन याद रखने का, when non-volatile solute is added, again I am repeating, non-volatile solute is added in solvent, vapor pressure decreases, ये याद रखने का। Now, so suppose this is what solvent है, इसका वेपर प्रेशर यहाँ पे है, सेम सॉल्वेंट मैंने यहाँ पे लिया है। इन शॉर्ट दोनों सॉल्वेंट सेम है तो बट ऑब्वियस इसका वेपर प्रेशर दोनों का सेम रहेगा। अभी देखिए ध्यान दो, इसमें मैं सोल्यूट डालता हूँ नॉन वोलेटाइल, तो व्हाट इज द मीनिंग, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड इन दिस वन, सो बट ऑब्वियस वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। अभी क्या होगा, इसका तो इधर ही है, आप बोलोगे तो इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट मोर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट लेस। अभी आई एम टॉकिंग, हेलो हाँ बोलो बेटा। संकेत सर, मेरा बाबर अभी जॉइन डिस्कनेक्ट क्विक एंड See, Varun, it has to be either a connectivity problem, a firewall setting, or some other problem because other people have joined and they've stayed joined. So try if you can stay on, and if it doesn't, we'll solve your problem after the next. Okay? क्या करूं? कोई नहीं सर, कंटिन्यू करिए। वो जो है बच्चे उनको मैं बाद में बताता हूँ सर, चलेगा ना? अगर इसको वैसे भी फिर मैं अपलोड कर दूंगा, ये बाद में देख सकते हैं, अभी फिलहाल इसका कोई प्रॉब्लम तो वो मेरे को फिर डाउट पूछेगा तभी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। ओके, लिसन ये बेटा, दोनों हियर सेम सॉल्वेंट, पानी लिया है तो बट ऑब्वियस दोनों का वेपर प्रेशर सेम रहेगा। नाउ इफ आई एम गोइंग टू पुट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो बट ऑब्वियस
वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज व्हाट लेस, ये हम लोग पढ़ा है। अभी क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो इसका ज्यादा है सॉल्वेंट का। सो इफ यू वांट टू मेक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस वन विथ दिस वन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज वी नो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज वेपर प्रेशर कम हो गया है, तो दैट्स व्हाई आपको इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। ओके, नाउ देखो यहाँ पे उसको ही लिखा है, इन at the boiling point of liquid its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, 1 atmosphere. In order to reach the boiling point, solution and solvent must be heated to attain the vapor pressure of 1 atmosphere. But obvious है ना। now आगे देखो बेटा, अभी क्या करना पड़ेगा। since at any given temperature, आपको मालूम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन प्योर सॉल्वेंट, ये टर्म याद रखने का, जो 4 लाइन बताया था। hence solution has to be heated to higher temperature so that its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। वापस बताओ, at any temperature vapor pressure of the solution is lower, नीचे है, तो उसको ऊपर लाने के लिए बट ऑब्वियस आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, बिकॉज hence the solution has to be heated to higher temperature so that its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Hence boiling point of solution with non-volatile solute is higher than that of pure solvent. Okay, this elevation in boiling point is proportional to the lowering of vapor pressure। आपको मैंने बताया ना डेल्टा टीबी, जो दो ग्राफ पैरेलल चलते थे, y एक्सिस पे डेल्टा पी था और x एक्सिस पे डेल्टा x था, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p। ओके, बट व्हाट इज डेल्टा p, बोलो बच्चों, व्हाट इज डेल्टा p? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है उसका आंसर? P1 माइनस पी नॉट है कि P01 माइनस P1 है? P01 अभी आप बोलोगे सर इधर सामने तो दिख रहा है, करके हमने बता दिया। चलो बोलो कैसे फाइंड आउट करने का, या आप कैसे पढ़ाओगे दूसरे को? चलो बोलो, चलो लिसन हियर, P01 minus P, just I'm asking you why it is not written P1। suppose जो भी बच्चे को नहीं समझा रहेगा what is P01, so please first of all try to understand P01। P01 is the, जहां पे नॉट लिखा है वो प्योर सॉल्वेंट है, so P01 is vapor pressure of pure solvent and P1 is वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास दो ही चीज है, एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूशन है, और आपका टर्म क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको मैंने ट्रिक क्या बताया, जस्ट आगे लिखो सॉल्यूशन, उसको उल्टा पढ़ो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होता है, तो बट ऑब्वियस ज्यादा किसका है, सॉल्वेंट का, एंड दैट्स व्हाई डिफरेंस मींस व्हाट, हायर माइनस लोअर। ओके, नाउ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, boiling point elevation and concentration of solute। Now very first lecture when I took, I started with concentration. There are different ways to express concentration. One is what percentage, one is what a mole fraction, one is what a molarity, normality, like this। Now what is general observation by experiment? Boiling point elevation, don't get confused, what is boiling point elevation? Delta TB, nothing but TB minus TB naught। What is naught? Boiling point of solvent। Okay,
So boiling point elevation, nothing but delta TB is directly proportional to molality m, small m. Okay. Now, if we are going to remove the sign of proportionality, उधर constant आ जाएगा Kb. This Kb is called boiling point elevation constant or molar elevation constant or ebullioscopic constant. You remember ebullioscopic constant. Now, they will ask you define ebullioscopic constant. तो कुछ ज्यादा rocket science नहीं है. Delta TB is equal to KB into M है ना. तो ये multiplication है ना यहाँ पे. Now, if I ask you 10 is equal to 10 into m. So when 10 will become 10, m का वैल्यू क्या मांगता है? 1 मांगता है ना. या फिर ये इधर भी अगर आपको समझ सकते देखो, if I ask you when this kb का वैल्यू equals to delta tb, आप बोलोगे सर मल्टीप्लीकेशन है. So if m is equal to 1, kb का वैल्यू is nothing but delta tb. Am I right? So what I can say, kb nothing but ebullioscopic constant. kb nothing but ebullioscopic constant is elevation in boiling point when m का वैल्यू 1. तो मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा ebullioscopic constant is nothing but elevation in boiling point when molality of solution is unity, nothing but 1. देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, when m is equal to 1 then delta tb is equal to kb, करके मेरा स्टेटमेंट क्या बन गया? ebullioscopic constant is the elevation in boiling point when molality of solution is unity. Now just can you tell me next topic जो है, tell me what is the formula for molality? What is the formula for molality? Anyone? बेटा लिसन हियर. हाँ हाँ बोलो बेटा, जोर से बोलो, गलत होगा चलेगा. लिसन हियर मोला, मैं आपको क्या मांगता है? मोलालिटी. पहले मैं बताता हूँ मोलारिटी, कैपिटल M. सो मोलारिटी इज व्हाट? N2 upon V of solution in liter. इन शॉर्ट आप लोग याद रखने का, व्हाट इज कैपिटल M? मोलारिटी N2 upon V. V means what? Solution का in liter. And what is small m? Same, N2 upon W1 in kg. W1 in kg. खत्म हो गया. देखो इधर. हाँ एक तो यूनिट ऑफ केबी क्या बन गया? व्हाट इज आपका ये क्या था? रिलेशन क्या था? देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम. तो केबी इज इक्वल टू क्या बन गया? डेल्टा टीबी अपॉन एम, है ना. तो मैं नेक्स्ट पेज पे गया तो इधर क्या लिखा है? देखो वही सेम चीज लिखा है. और ये डेल्टा टीबी टेम्परेचर है ना, तो केल्विन में. और मोलालिटी का यूनिट क्या है? मोल्स पर केजी. जो बच्चा ये भी याद रखेगा ना मोल्स पर केजी, तभी भी उसको बाय हार्ट हो जाएगा. यार व्हाट इज दैट? मोल मींस व्हाट? N2 और केजी मींस व्हाट? वेट है किसका? सॉल्वेंट. सो व्हाट इज द यूनिट? केकेजी पर मोल. खत्म. केकेजी पर मोल. अभी कोई बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ पे मोलालिटी क्यों लिया? कॉन्सेंट्रेशन है तो मोलारिटी क्यों नहीं लिया? बट ऑब्वियस genuine question. We are talking about different temperature. We are talking about temperature. हम टेम्परेचर का पढ़ाई कर रहे हैं. ओके तो हर एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मींस वो टेम्परेचर तो डिफरेंट रहेगा. तो अगर मोलारिटी लूं तो मोलारिटी
is based on what volume, and volume depends on what temperature. So as temperature increases, yeah, temperature changes, molarity will change, and that's why here we cannot take molarity, we have to take molality. Okay, this one देखो वही ब्रैकेट में मैंने लिखा है, as molarity is temperature dependent, hence molarity is not considered, whereas molality is temperature independent. एक लास्ट डेरिवेशन है, 2 मिनट का खत्म करता हूं और हम लोग रुकते हैं. ओके, फिर ध्यान दें. मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. अभी मेरे को क्या इक्वेशन मिला है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्या मिला है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. मेरे को आरएलवीपी क्या मिला था, कोई बच्चा बताएगा व्हाट वाज आरएलवीपी? चलो बोलो, पहले बोलो व्हाट इज आरएलवीपी. डेल्टा V upon P1 upon P1. आगे बोलो, इज इक्वल टू व्हाट, x2. वेरी गुड, x2 को इलेबरेट करो बच्चा. WM MW 2-1-2-1, WM MW 2-1, वेरी गुड, है ना. तो देखो यहाँ पे डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. व्हाट इज m स्टैंड्स फॉर, चलो बोलो फास्ट, व्हाट इज स्मॉल m स्टैंड्स फॉर, मोलालिटी. फॉर्मूला बोलो, मोल पर केजी, मोल पर केजी. व्हाट इज मोल, नंबर ऑफ मोल्स, एंड वेट ऑफ द सॉल्वेंट. तो याद क्या रखने का, N2 upon W1 in kg. देखो तो m इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. देखो N2 upon W1 in kg, इतना याद रखो, बस हो गया. व्हाट इज W1 इज व्हाट, सॉल्वेंट, एंड A2 इज व्हाट, सोल्यूट. तो देखो मैं वापस, मेरे को मोलार मास टर्म लाना है ना, बाय हुक और क्रूक, बाय हुक और क्रूक मेरे को मोलार मास टर्म लाना है, और मोलार मास टर्म किस में छुपा है, N2 में, और N2 किस में छुपा है, M में. सिंपल बेटा. सो N2 के लिए मैंने लिखा W2 अपॉन M2, आ गया मेरा मोलार मास टर्म. W1 लिखा है अपॉन W1, है ना. जनरली जो आपको वैल्यू दिया जाता है वो ग्राम में दिया जाता है ना. तो किलोग्राम इज नथिंग बट, है ना, ग्राम में इफ आई वांट टू राइट ऑन 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, 1000, है ना, 10⁻³ बनेगा. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, बोल बेटा. इट इज व्हाट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये देखो डेल्टा टीबी, ये बी, और व्हाट इज m, याद रखने का भी, W2 अपॉन M2 W1, W2 अपॉन M2 W1. जैसे मैंने बोला था WM MW 2-1-2-1, तो ऊपर से M1 निकाल देने का, खत्म हो गया, उधर 1000 रख देने का. ओके, सो व्हाट वी वांट, डेरिवेशन इज आस्क फॉर मोलार मास. तो एक काम करो, ये मोलार मास इधर है, उसको इधर लेके जाओ, इसकी जगह पे ये रख दो. व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, M2 इधर से इधर गया, तो ये डेल्टा टीबी उसकी जगह पे आ गया. तो KB W2 1000 W1 W1, और ये जो डेल्टा टीबी इधर आ गया. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ व्हाट, मोलार मास. सो टुडे means what we did, relative lowering of vapor pressure and elevation in boiling point. Okay, so next time we'll try to finish these two, that is what, depression in freezing point and osmotic pressure. Okay, so today ये घंटा हो गया, so today we'll stop here. Bye bye. Say bye bye. Bye sir, good night. Okay, bye. Take care sir.